ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସେମିଷ୍ଟର 3ର ପେପର ଲଜିକ୍ ବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାଉ। ଆଜି ସେଇ ପେପରର ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ତାର ପଛରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଛେ, ତାର ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟଟା ଟିକେ ଆଗ ବୁଝିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାର କି 3ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଯେ ସେ ମଣିଷ ବୋଲି, କାରଣ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଅନୁଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ, ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସେ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଣ୍ଟେ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର ବି କରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହେ, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, କିଛି ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ବା ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିବା, ସେଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କେତେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଦାବିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ସେହି ବିଷୟରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିବା, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର କେମିତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନେ ବା ବହୁତ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଜ୍ଞାନ। ଥମସନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲଜିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ବିଜ୍ଞାନ ନା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ଯୁକ୍ତି କେମିତି କରାଯିବା, ଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ କହୁଛନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ। ସେମିତି ଆଲ୍ଡ୍ରିଚ୍ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଜନିଂ, ବିଚାର କରିବାର ଗୋଟେ କଳା। ସେମିତି ହୁଇଟଲି ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ଉଭୟ କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଥାରୀତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏବଂ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ତାକୁ କଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ହୁଇଟଲି ବୋଲି ଯେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ହୁଇଟଲିଙ୍କ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଉଭୟ କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହାମିଲଟନ୍, ଥମସନ୍, ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ଉଭୟ କଳା ଏବଂ ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ନିୟମ ଅଛି ତାର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ
आमे बुझुचे साधारण अर्थरे तर्कशास्त्र माने आमे कौन बुझुचे ना जो शास्त्र जी कि आमको गोटे केमती जुक्तिटीए आमे उपस्थापन करिबा सठिक भावरे जुक्ति को केमती उपस्थापन करिबा निर्भुल भावरे जुक्तिटी को केमती अन्य सम्मुखरे रखिबा सेही शिक्षा आमको तर्कशास्त्र साधारणतः देइथाय। तेणु जेतेबेले आमे कहूचे तर्कशास्त्र साधारणतः जुक्ति सहित संपृक्त केवल जुक्ति कहले हब नहीं मन इच्छा आमे कौनसी जुक्ति करिबा नहीं जुक्ति करिबार मध्य गोटे शैली अछि। तेणु तर्कशास्त्र आमको शिखाए केमती ना गोटे वैध जुक्ति गोटे सठिक जुक्ति गोटे निर्भुल जुक्ति केमती करा जाई पारिबो तार नियम कौन सेगुड़िक विषय आमको तर्कशास्त्र ज्ञान देइथाय। सेमती आमे कहूचे तर्कशास्त्र जेतेबेले आमे कहूचे तर्कशास्त्र रे आमे कौन करछे गोटे जुक्ति केमती करबा तार स्टैंडर्ड आम पाखरे दिया आइछि सेथिपई ताको कुहाउछि कौन तर्कशास्त्र को आमे बुझिथौ कौन ना तर्कशास्त्र होछि गोटे आदर्श निष्ठ विज्ञान एवं यही आदर्श दी साधारणतः आमे दुई प्रकार विज्ञान कथा कथाइथौ साधारण भाबरे गोटे होछि आदर्श निष्ठ विज्ञान एवं द्वितीयटी होछि विवरणात्मक विज्ञान। विवरणात्मक विज्ञान रे आमे कौन करथाउ साधारणतः आमे कौन करथाउ गोटे घटना रे जहाँ घटाए जेमती भावरे घटनाटी घटी थाए ताकू सेही भली भावरे जेतले वर्णना करिथाउ घटना जहाँ ताकू सेही भली भावरे उपस्थापन करिथाउ ताकू आमे कहिथाउ कोन ए होची विवरणात्मक विज्ञान किंतु आदबा वस्तुनिष्ठ विज्ञान बोली मध्य ताकू कहा जाय। किंतु जेतेबेले आमे आदर्शनिष्ठ विज्ञान कथा होउचे तेणु एठी आमको भाविबा पड़िबो आदर्श माने आमे निश्चित भावरे किछि गुण किछि लक्षण को आमको अनुकरण को पड़िबो जहा द्वारा कि आमे आदर्शनिष्ठ विज्ञान कथा कहबा। जेमते आमे जानुचे आमर तर्कशास्त्र आमर नीतिशास्त्र आमर सौंदर्य शास्त्र ताको आमे कहूचे आदर्शनिष्ठ विज्ञान बोली कहिथाउ काहे कि कारण एथिरे किछि लक्षण बा किछि स्टैंडर्ड अछि जहा को नेकी आमे जानी थाउ एई व्यवहारटी सठिक कि ए व्यवहारटी ठीक नुहे ए व्यवहारटी करिबा उचित कि व्यवहारटी करिबा उचित नुहे जोटा कि हमर नीति शास्त्र निर्धारण करिथाय। ठीक सेमती सौंदर्य शास्त्र रे आमे कोन करिथाउ ना जे कोनोसी गोटे सुंदर वस्तु बा सुंदर जिनसटी को देखिले आम पाखरे जो लक्षण अच्छी जे सुंदर को जिनसटी को आमे सुंदर कहबा बा काहाको असुंदर कहबा आमे संगे संग ता संगे तुलना करिथाउ तो तुलना कला पर आमे सेठी को सुंदर बा सुंदर नुहे बोली कहिथाउ। ठीक सेही परी लॉजिक बा जहा को आमे तर्कशास्त्र कहूचे तर्कशास्त्र कौन करे ना ता पाखरे मध्य किछि गुण बा किछि स्टैंडर्ड से रछि किछि नियम अछि जहा द्वारा कि से गोटे जुक्ति उपयुक्त जुक्ति गोटे जुक्ति वैध जुक्ति कि यह निर्भुल जुक्ति हाँ कि नुहे सेटा को से मध्य ठीक भावरे निर्धारण करिथाय। सेथिपई आमे साधारणतः एई तीनोटी विज्ञान बोली कहले भी हब तीनोटी शास्त्र बोली मध्य कहले हब कौन से तीनोटी शास्त्र ना गोटे होची नीति गोटे होची हमर तर्कशास्त्र द्वितीयटी होची नीतिशास्त्र तृतीयटी होची सौंदर्य शास्त्र जहाँ को आमे आदर्श निष्ठ विज्ञान बोली कहिथौ। आउ जेते हमर सब्जेक्ट अच्छी जेमते आमे पदार्थ विज्ञान कहि परबा जहाँ को आमे फिजिक्स बोली कहिथौ आमे प्राणी विज्ञान कहि परबा जहाँ को आमे बायोलॉजी बोली कहिथौ आमे जूलॉजी बा जहाँ को आमे जूलॉजी होची प्राणी विज्ञान बायोलॉजी होची जीव विज्ञान बा आमे सोशियोलॉजी समाज विज्ञान से सब गुड़ी को आमे कौन कहि परबा ए गुड़ी को होची वस्तुनिष्ठ विज्ञान केवल ए तीनोटी जो तीनोटी मु कहली गोटे होची तर्कशास्त्र द्वितीयटी होची नीतिशास्त्र एवं तृतीयटी होची हमर सौंदर्य शास्त्र जो तीनोटी को आमे केवल आदर्शनिष्ठ विज्ञान बोली कहि पारिबा। तेणुकरी वर्तमान आमे आलोचना करिबा जे तर्कशास्त्र स्वरूप कौन तार परिसर कौन एवं तार विषय वस्तु कौन साधारणतः तर्कशास्त्र कहले आमे कौन बुझू सेटा आमे देखिबा। जो तर्कशास्त्र शब्दटी आमर ग्रीक शब्द लोगस रु आसीछि। लोगस रो अर्थ कौन लोगस रो अर्थ होची चिंता बा जुक्ति तार आक्षरिक अर्थ होची लोगस शब्दटीर आक्षरिक अर्थ होची चिंता बा जुक्ति।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବା ଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କରେ ନା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମେଥଡ଼, ପଦ୍ଧତି, ନିୟମ, କେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣେଇବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣେଇବା? ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତାକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି, ଯେମିତି କହିଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା। କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା। ସେଇ ମୌଳିକ ନିୟମ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୈଧତାକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ, ଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା, ବୈଧତା କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଟୁଲ୍ସ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ଯୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ବୈଧତା ବା ଅବୈଧତାକୁ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁକରି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା କିମ୍ବା ତାର ଅବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁଠି ଆମର ସେନ୍ସ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। କେମିତି ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ, ଫୁଲକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ଆମର ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ଆଖି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆଖି ଦେଖିଲେ କାହାକୁ? ନା ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା। ଫୁଲ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଖି ଆଉ ଫୁଲର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ନାଲି କି ଗୋଲାପୀ କି ହଳଦିଆ, ତାର ରଙ୍ଗଟି ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗଟି ଯେଉଁ ଜାଣୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହେଉଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନା ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁକି ତାର ସେଟା ନରମ ନା ସେଟା କଠିନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ପାଣିକୁ ମୁଁ ଚାଖିଲି, କାରଣ ଚାଖିବା ବି ଜିଭ ବି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ପାଣିଟି ଲୁଣିଆ କି ମଧୁର କି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଅନୁମାନିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଇନଫରେନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅନୁମାନ, ଏଇଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ପାଇବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନ। ମାନ ମାନେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅନୁ ମାନେ ପରେ ପରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କହୁଛେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଦେଖିଲେ, କଳା ମେଘ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେବ, ବା ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ମାଟି ଓଦା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି ଜ୍ଞାନ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ନା କଳା ବାଦଲ ଅଛି ଆକାଶରେ। ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କ'ଣ? ନା ମାଟି ଓଦା ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ନହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି।
ତେଣୁକରି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅନୁମାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଅନୁମାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନ ଦେଇକି ଆମକୁ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଅନୁମାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁମାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜଣାରୁ ଅଜଣାକୁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ ବା ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି, ଏତିକି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, କ'ଣ ନା ସ୍ୱରୂପ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରଟି କ'ଣ, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଯାହାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ଭାଷା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଯାଇଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝୁଛେ ନା ଚିନ୍ତାର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଭାଷାର ମୋତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର କ'ଣ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଷା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତାର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମର ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେମିତି ନା, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଧର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଟେବୁଲଟିକୁ ଚେୟାର ବୋଲି ଭାବିବି ନାହିଁ, ଭାବିଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଟେବୁଲଟିକୁ ସେଇ ଟେବୁଲ ବୋଲି ମାନିବି। ସେଇଟିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନିୟମ। ଆମର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନିୟମ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପତ୍ରଟି ନେଳି ରଙ୍ଗର, ତାମାନେ ଯାହା ନେଳି ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପତ୍ର ପାଖରେ ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିରୁଦ୍ଧ ନିୟମ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉ କି ସେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉ କି ସେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଭାବଧାରା ହଉ, ଭାବ ବା ଉଦ୍ରେକକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମର ଉପଯୋଗ କରୁଛେ। ମୌଳିକ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସୁଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଯଥାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଲଜିକ୍ ବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ମୌଳିକ ନିୟମ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ସେହି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସୁଚିନ୍ତା, ସେଇ ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇବ ବା ଆମକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ, ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ନିୟମ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ସେ ନିୟମ କଥା କହୁଛି? କାରଣ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିପାରିବା ବା ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଉ, ସେ ଯୁକ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଧ ବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଯଦି ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନି ନଥାଉ, ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଅଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଯୁକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ ନ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ କରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମଟି ମାନିଲେ ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ନିୟମଟି ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିର
वैधता बा अवैधता नियम उपरे निर्भरशील अटे। तेणु जेतेबेले आमे से नियम गुड़िक न मानु नियमर उल्लंघन रे आमर कौन हुए ना तर्क दोष सृष्टि हुए एवं से तर्क दोष आमे कौन करूँ जो जहाँ कि जो से तर्क दोष गुड़िक आमर विभिन्न प्रकार जो तर्कशास्त्र रही जहाँ विषय आम पर आलोचना करवा से विभिन्न प्रकार तर्कशास्त्र रे आम तर्क दोष देखा पाऊ कारण तर्क दोष गुड़िक नियम उल्लंघन होता है। जितेबाला आम तर्कशास्त्र कहूचे तर्कशास्त्र कथा कहूचे तर्कशास्त्र साधारणतः दुई भाग रे विभक्त होता है। गोटे हूँ अवरोह अनुमान आ गोटे हूँ आरोह अनुमान। आरोह माने आम आरोहण माने चढ़ी चढ़ी के ऊपर को जीवा अवरोह माने उपरु तल को ओह्लैवा एगुड़ा साधारण अर्थ तार एगुड़ाक तार माने तर्कशास्त्र अर्थ आउटे भिन्न रहिबो किंतु साधारण अर्थ रे आम बुझीबा कौन आरोह आ गोटे हूँ अवरोह। आरोह माने आम चढ़ी चढ़ी के ऊपर को जीवा अवरोह माने आम तल को ओह्लैवा सेमती आम जितेबाला कहूचे तर्कशास्त्र दुई प्रकार गोटे हूँ आरोह तर्कशास्त्र बोली कहबा आ गोटे हूँ अवरोह तर्कशास्त्र बोली कहबा। आरोह तर्कशास्त्र रे आमे कौन करूँ साधारणतः आमे जो तार सिद्धांत रे जो कथा कही था जोटा कि आमर बहुत अधिका कही था साधारणतः आमे ताकू जेनेरालाइजेशन करि थाउ जो किछि जनकर परीक्षा निरीक्षा करी समस्त विषय कही दे थाउ किंतु आमे अवरोह तर्कशास्त्र रे आमे कौन करूँ जहाँ बाहरी पारिबो आपादन जहाँ बाहरी पारिबो केवल सेतिकी कथा कही थाउ। तेणुकरी आमे आरोह तर्कशास्त्र सेमती कहबा तो आरोह तर्कशास्त्र रे आमे कौन करूँ कम रु अधिका जाई थाउ किंतु अवरोह तर्कशास्त्र रे आमे अधिक रु कम को आसी थाउ। सेमती आमे कहि परिबा जे आरोह तर्कशास्त्र कौन करे ना वस्तुगत सत्यता उपरे गुरुत्व दे थाए किंतु अवरोह तर्कशास्त्र आकारगत सत्यता उपरे गुरुत्व दे थाए। सेमती आमे कहूचे कौन ना आरोह तर्कशास्त्र जो सिद्धांत ताहा केबे भी निश्चित नुहे किंतु अवरोह तर्कशास्त्र सिद्धांत सबुबले निश्चित। एटा को बुझेवा पाई कि मो दुईटी उदाहरण नेबी से उदाहरण नेले आमे बुझे परिबा आ टिके ता विषय आलोचना करिबा। जेमती आमे कहूचे आरोह तर्कशास्त्र गोटे उदाहरण नबा राम मरणशील अटे तापरे आमे कहबा रहीम भी मरणशील अटे तापरे कहले रक्की भी मरणशील अटे तापरे सिद्धांत रे पहुंची जाई कि आमे कहबा कोन ना जो आमे कहले जे समस्त मनुष्य मरणशील अटंती। सेमती आमे कहबा जे गोटे अवरोह अनुमान रे गोटे आमे जुक्तिटी नबा जुक्तिर उदाहरणटी नबा जो थरे कहबा समस्त मनुष्य मरणशील अटंती तापरे कहबा राम गोटे मनुष्य अतएव राम मरणशील अटे। तेणु एठी आमे देखुचे आरोह रे आमे कोन करूचे गोटे राम गोटे ताको परीक्षा निरीक्षा कले रहीम गोटे ताको परीक्षा निरीक्षा कले रक्की गोटे ताको परीक्षा निरीक्षा कले सिद्धांत रे कोन कले आमे समस्त विषय रे कहि दिले कौन आम कहले समस्त मनुष्य मरणशील अटंती। एठी समस्त मनुष्य कहले काहाकू बुझे ना जेते अतीत रे थिले जेते वर्तमान अछंती जेते भविष्यत रे आसीबे समस्त मरणशील बोली कहूचे। एटा होची कौन ताहार उदाहरण आरोह जुक्तिर। सेमती गोटे अवरोह जुक्तिर उदाहरण निया जाऊ जोथि पई कि मु कहूची जे आरोह जुक्तिर कौन हुए ना आमे कम रु अधिका को जाइथौ। देखो मु कहा विषय कहली मु कहली राम विषय कहली तापर कहा विषय कहली रहीम विषय कहली तापर कहा विषय कहली रक्की विषय कहली किंतु सिद्धांत रे मु समस्त विषय कहीदेली। ठीक से परी अवरोह जुक्ति रे आमे अधिक रु कम को आसी थाउ। अधिक रु कम कौन ना मु प्रथमे कौन कहली समस्त मनुष्य मरणशील तापर कौन कहली जे तापर कहली राम गोटे मनुष्य तापर कौन कहली राम मरणशील अटे। तेणु एठी मु अधिक रु कम को गली अवरोह जुक्ति रे किंतु आरोह जुक्ति रे मु कम रु अधिका कहली। जेतेबेले मु कहूची ऑल मेन आर मॉर्टल बा मु कहूची समस्त मनुष्य मरणशील एई जो वाक्यटी कदापि निश्चित नुहे तार प्रोबाबिलिटी संभाव्य वाक्यटी संभाव्य आर संभावना बहुत अधिक होई पारे किंतु एटी निश्चित नुहे किंतु अवरोह जुक्तिर सिद्धांत सबुबले निश्चित
कारण सी बाहरी कौट जहाँ दिखाई से जेतिकी बाहरी पार आम से कथा सिद्धांत कथा किंतु आरोह जुक्ति आम कौन करुचे जहाँ दि जाठू बहुत अधिका कथा आम कथा होचे से आम कहूँ कौन तर्कशास्त्र को दुई भाग में साधारणतः आम विभक्त करुचे जेहेतु तर्कशास्त्र को आम दुई भाग में विभक्त करुचे आ मूलर मु कही सारी तर्कशास्त्र को आम जुक्तिर विज्ञान बा चिंतार विज्ञान बोली कहूचे तेणुक आमर जेते जुक्ति अच्छी ताकू मध्य आम दी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ आरोह जुक्ति आ गोटे हूँ अवरोह जुक्ति तेणु बर्तमान जुक्ति विषय रे कथा जुक्ति कौन मु आगु अनुमान कही तेणु अनुमान टी अनुमान को कही मानसिक प्रक्रिया तेणु से मानसिक प्रक्रिया को जेतेबेले मो भाषा रे व्यक्त करदे से कौन हो जुक्ति हो जुक्ति को क्या कहवा ना जेतेबेले गोटे अनुमान भाषा रे व्यक्त हुए ताकू आम जुक्ति बोली कही थाउ तेणु से कौच कौन ना यही जो जुक्ति जुक्ति रे कौन हुए अनेक गुड़िए आम तर्क वाक्य देखा थाए जुक्तिर गठन टाक आलोचना करवा तार स्ट्रक्चर टा कौन आम जुक्ति कौन प्रथम जानीदे जुक्ति कौन ना अनुमान जेतेबेले भाषा रे व्यक्त हुए ताहाकू जुक्ति कह जाए ये आम जानीदे तापर आम जाना कौन जुक्तिर गठन गोटे जुक्ति भितर अनेक गुड़े आम तर्क वाक्य देखा पाई था से तर्क वाक्य भितर से कुछ किसी तर्क वाक्य आमको दिखाई था जो तर्क वाक्य गुड़िक अन्य तर्क वाक्य पाई भित्ति भली काम करे ग्राउंड भली काम करे तेणु जो तर्क वाक्य आमको बा जहाँ आम जो तर्क वाक्य आमको दि जाइछि ताकू आम कौन करछे हेतु वाक्य बोली कहू इंग्लिश रे ताकू प्रेमिस बोली कही थाउ प्रेमिस रु बा हेतु वाक्य रु जहाँ बाहरी पारिबो ताकू आम सिद्धांत बोली कही थाउ आउ थरे मु कहि दउछि जुक्तिर गठन गोटे जुक्ति मध्य अनेक गुड़िए तर्क वाक्य देखा पाऊ से तर्क वाक्य मध्यरु किछि तर्क वाक्य आमको दि जाए जहाँ आमको दि जाइछि ताकू आम हेतु वाक्य बोली कही थाउ हेतु वाक्य रु जहाँ निश्रुत हो पारिबो हेतु वाक्य रु जहाँ बाहरी पारिबो से विषय को आम सिद्धांत रे कहि परिबा तेणु हेतु वाक्य रु जहाँ बाहरी पारिबो ताकू आम कौन कहू सिद्धांत कही थाउ तेणु प्रत्येक से आरोह जुक्ति हो कि से अवरोह जुक्ति हो आरोह जुक्ति रे मध्य आमे देखिबा को पाऊ हेतु वाक्य सिद्धांत अवरोह जुक्ति रे मध्य आमे देखिबा को पाऊ हेतु वाक्य एवं सिद्धांत प्रत्येक हेतु वाक्य हो कि से सिद्धांत हो से समस्त गुड़िए हूँ गोटे गोटे तर्क वाक्य तेणुक आम आहुरी सुंदर भाव में कहीपर गोटे जुक्ति अनेक गुड़िए तर्क वाक्य को नहीं गठित से तर्क वाक्य मध्यरु किछि तर्क वाक्य को आम हेतु वाक्य कही था एवं अनेक अन्य तर्क वाक्य गुड़ी को आम सिद्धांत बोली कही था खाली मन रखा एति पड़ो सिद्धांतटी सब बड़े हेतु वाक्य निश्रुत होता है जहाँ आमको दिखाई मत दिखाई कौन समस्त मनीष मरणशील आउ कौन दिखाई राम गोटे मनीष से कौन बाहरी पार राम गोटे भल पिला बाहरी पार ना से कौन बाहरी पार ना केवल बाहरी पार राम मरणशील तेणु जहाँ दिखाई कहले हेतुवाक्य जहाँ से बाहरी पार आम सिद्धांत बोली कहले से आम जानिले कौन ना गोटे जुक्ति हेतुवाक्य एवं सिद्धांत को नहीं गठित होता है किंतु समस्त हेतुवाक्य एवं सिद्धांत गोटे गोटे तर्क वाक्य अटंती तेणु तर्क वाक्य विषय वर्तमान टिके कथा हवा जहाँ को आम इंग्लिश रे प्रपोजिशन बोली कही था प्रपोजिशन ताहले कौन होची ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आर्गुमेंट गोटे आर्गुमेंट रो गोटे आर्गुमेंट रो आमे ताको कौन कहवा गोटे आर्गुमेंट रो बिल्डिंग ब्लॉक होची किए ना होची तर्क वाक्य प्रत्येक तर्क वाक्य रे आमे तीनोटी कंपोनेंट बा प्रत्येक तर्क वाक्य रे तीनोटी अंश विशेष आमे देखिबा को पाइथौ कौन से गुड़िक ना गोटे होची आमर उद्देश्य आ गोटे होची आमर विधेय एवं तृतीयटी होची आमर संयोजक गोटे होची उद्देश्य गोटे होची विधेय आ गोटे होची संयोजक ताहले वर्तमान देखिबा उद्देश्य काहा को कहबा विधेय काहा को कहबा संयोजक काहा कहबा उद्देश्य आमे काहा कहबा ना तर्क जहाँ विषय रे
तर्क वाक्य रे कुहा जाई थाए ताको आमे उद्देश्य बोली कहि थाउ। तर्क वाक्य रे जहा विषय रे कुहा जाईची ताहाको उद्देश्य बोली कुहा जाए। उद्देश्य विषय रे जहा कुहा जाए जी उद्देश्य विषय रे कहि थाए ताको विधेय कुहा जाए। ठीक सेमती उभय उद्देश्य आ विधेय को जे जोड़ी थाए बा जे संयोजकर काम करि थाए ताको आमे कोन कहू ताको आमे कपुला बा ताको संयोजक बोली कहते। कारण आमर गोटे वाक्य हवा दरकार, तर्क वाक्य हवा दरकार। तर्क वाक्यटी केमती हबो उद्देश्य आ विधेय मने मने जोड़ी ही परिबे नहीं, तेणु तांको जोड़ीबा पाई कि गोटे कोन दरकार, तेणु संयोजक उद्देश्य आ विधेय को जोड़िकी गोटे तर्क वाक्य गठन करिथाए। जेमती आमे गोटे उदाहरण नहीं परिबा घास सबुज अटे। एठी घासटी एई तर्क वाक्य एटा यदि गोटे तर्क वाक्य हला एई तर्क वाक्य रे घास विषय रे कहा जाईची। मु कहिची मूलरू जहा विषय रे तर्क वाक्य रे कहा जाई थाए ताको आमे उद्देश्य कहि थाउ। तेणु एठी घास विषय रे कहा जाईची, तेणु घासटी होची कोन उद्देश्य। घास विषय रे कोन कहा जाईची ना घासर वर्ण होची सबुज बोली कहाइछि, तेणु सबुजटी होची विधेय। तेणु घास आ सबुज को जोड़ीछि के ना अटे, से अटे को आमे कहूचे संयोजक। तेणु प्रत्येकटी तर्क वाक्य रे आमे एही तीनोटी अंश विशेष देखा पाइबा। सेमती आउ गोटे उदाहरण मध्य नहीं परिबा समस्त मनीष मरणशील अटंती। तेणु समस्त मनीष विषय कहाइछि सेटा होची उद्देश्य, मरणशील होची विधेय, अटंती होची संयोजक। तापर से कौचे एठी मु कौन कहली ना मु कहली गोटे जुक्ति तर्क वाक्य को नहीं गठित। किंतु आमे छोट बेलू वाक्य विषय बहुत पढ़ी आसीचे, व्याकरण रे हमर वाक्य विषय बहुत पढ़ी आसीचे। तेणु एठी मन रे प्रश्न आसुची वाक्य जहा तर्क वाक्य सेया ना वाक्य और तर्क वाक्य मध्य किछि प्रभेद रही। तर्कशास्त्रविद मैंने कहते वाक्य और तर्क वाक्य मध्य प्रभेद रही। से प्रभेदटी कौन बा पार्थक्यटी कौन वर्तमान ताको आलोचना करबा। तेणुक से कौच कौन एमती आम कहीपर तर्क वाक्य गुड़िया समस्त तर्क वाक्य गुड़िक वाक्य अटंती, किंतु समस्त वाक्य गुड़िक तर्क वाक्य नुहंती। आउ थे कौच देखो समस्त तर्क वाक्य गुड़िक वाक्य किंतु समस्त वाक्य गुड़िक तर्क वाक्य नुहे। एथुरु स्पष्ट हो जाउची जे वाक्य आउ तर्क वाक्य मध्य प्रभेद बा पार्थक्य रही। तेणुक आमे जेतबेले तर्क वाक्य विषय रे कथा होचे यह किपरि वाक्य ठू भिन्न वर्तमान से विषय रे देखिबा। वाक्यटी को आमे साधारणतः कहा विषय रे कहितो ना वाक्यटी होची व्याकरणर विषय वस्तु बोली आमे जानि थाउ। सेमती आमे तर्क वाक्य को कौन कहू ना तर्क वाक्य तर्क शास्त्र विषय वस्तु बोली कहि थाउ। वाक्यटी भूल बा निर्भूल हो पार आपको किए निर्धारण करिवो ना आमर जो व्याकरण जो नियम गुड़िक अच्छी गोटे वाक्य गठन करने कौन कौन नियम अच्छी से नियम गुड़ी को मानिकी जदि गोटे वाक्य गठन कराई ताहले आमे ताको निर्भूल वाक्यटी बोली कहबा। जदि नियम गुड़िक न मानिकी मन इच्छा आमे करिचे ताहले आमे ताको भूल वाक्य बोली कहबा। ठीक सेमती आमे गोटे तर्क वाक्य को कौन कहि थाउ तर्क वाक्यटी सत्य किंबा मिथ्या हम। जेमती कहली व्याकरण निर्धारण करे वाक्यर भूल बा ठीक, सेमती तर्क वाक्यर सत्यता बा मिथ्याता को किए निर्धारण करिवो ना आमर फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस बा आमे जहाँ कहे घटना बा घटना बड़ी से कौन करिवो निर्धारण करिवो तर्क वाक्यटी सत्य कि तर्क वाक्यटी मिथ्या। केमती धर आमे कहिले घासर वर्ण सबुज बोले आमे कहले, तेणुक मु कौन कली गली मोर जो बगीचा अच्छी बगीचा गली बगीचा को जाइए बा आमे गले बगीचा को बगीचा रे जाइए आमे घासर वर्ण देखिले कौन तापर देखिले सतरे से कौन होइची ना सबुज होची। तेणु जहाँ तर्क वाक्य रे वर्णना कराहीची घटनावली रे ठीक सेया अच्छी ताहले आमे तर्क वाक्यटी को सत्य बोली कहबा। अଯଥା कहले अर्थात बा अन्यथा आमे ताको कौन करबा मिथ्या बोली कहबा। धर मु कहली घास तरल अटे, तेणु आमे जानिचे तरल पदार्थ को आमे जदि हाथ रे धरिबा से बोही जीवो। तेणुक आमे जाइए गोटे घास गुड़िया को हाथ रे धरिले देखिले से बोहू नाही। तेणुक आमे कौन जानले ना जहाँ तर्क वाक्य रे वर्णना कराहीची
घटनावली से नुहे विपरीत अटे से आम तर्क वाक्यटी को मिथ्या तर्क वाक्य बोली कहले आम तर्क वाक्य को भूल बा ठीक कहवा ना आम सब तर्क वाक्य को सत्य बा मिथ्या कहवा ठीक से आम वाक्य को भूल बा निर्भूल बोली कहवा जमती आम गोटे वाक्य कथा कथा होचे बा जानीचे वाक्य अनेक प्रकार वाक्य गोटे वाक्य अनेक अंश विशेष अच्छी कौन अच्छी ना से गोटे विशेष अच्छी विशेषण अच्छी क्रिया अच्छी सर्वनाम अच्छी केते कथा अच्छी आम जानीचे से गुड़िया सब व्याकरण विषय वस्तु किंतु गोटे तर्क वाक्य तीनोटी केवल अंश अच्छी गोटे हूँ उद्देश्य गोटे हूँ विधेय आ गोटे तृतीयटी हूँ कौन संयोजक अच्छी सेमती आम कहे गोटे वाक्य वाक्य अनेक प्रकार हो पार जमती आम कहे प्रश्नमूलक वाक्य आदेशमूलक वाक्य बा आम कहीपर वर्णनामूलक वाक्य बा आम कहीपर जमती आश्चर्यमूलक वाक्य एमती आम अनेक गुड़े वाक्य कथा कहीपर किंतु सबु वाक्य गुड़ी को आम तर्क वाक्यर स्थान दे परिबा नहीं जो वाक्य केवल सत्य बा मिथ्या हबार संभावना रही से वाक्यटी को आम केवल तर्क वाक्य रूपे परिगणित करमती धर भगवान तुमर मंगल करंतु जन वाक्य उच्चारण कले आशीर्वाद दे भगवान तुमर मंगल करंतु किंतु ए वाक्यटी को आम सत्य बा मिथ्या कहीपर ना तेणु ये को आम तर्क वाक्यर स्थान दे पारिबा नहीं जदि कहवा समस्त मनीष मरणशील अटंती ताले ये सत्य तर्क वाक्य बोली कहीपर जेहेतु ये तर्क ये वाक्यटी सत्य बा मिथ्या हबार संभावना रही वर्णनामूलक वाक्य से वाक्य गुड़ी को आम केवल ताकू तर्क वाक्यर स्थान दे पारिबा अन्य वाक्य गुड़ी को आम तर्क वाक्यर स्थान दे पारिबा नहीं मु जितेबाला ये हूँ आमर जुक्ति संबंधी जुक्ति रू आम आसिले तर्क वाक्य रु आम आसिले वाक्य को वाक्य और तर्क वाक्य मध्य प्रभेद कौन आम से विषय आलोचना कले जितेबाला मुझे प्रथम कही रखी तर्कशास्त्र दुई प्रकार गोटे हूँ आरोह गोटे हूँ अवरोह तेणु आरोह तर्क वाक्य विषय आगे आलोचना करवा आम अवरोह को जावा साधारणतः आम आरोह तर्क वाक्य आम कौन करूँ गोटे तर्क वाक्य आरोह तर्कशास्त्र आम कौन बा आरोह जुक्ति कौन करे ना गोटे सार्विक तर्क वाक्यर वस्तुगत सत्यता को सिद्धांत प्रतिपादन करिथाए केमिति ना किछि आंशिक किछि गोटे गोटे उदाहरण नहीं से उदाहरण साहाय्य सिद्धांत से कौन करे ना गोटे सार्विक तर्क वाक्यर वस्तुगत सत्यता को प्रतिपादन करिथाए तेणु ये वस्तुगत सत्यता को प्रतिपादन केमती करे ना से कौन करे किछि उदाहरण को परीक्षा निरीक्षा करे तापर से कौन करे गोटे लंफ प्रदान करे से लंफटी कौन करे ना जेहेतु हेतु वाक्य गुड़ी बहुत अधिका कथा कहे अलरेडी गोटे उदाहरण अलरेडी दे सारी आम केवल राम को परीक्षा कले देखले राम मरणशील केवल रहीम को परीक्षा कले देखले मरणशील केवल रकी को परीक्षा कले देखले मरणशील किंतु आम सिद्धांत कौन कले समस्त मनीष विषय कहले समस्त मनीष माने अतीत जिते वर्तमान जिते अच्छा भविष्य जिते आसी तेणु से समस्त विषय आम कहीदे सिद्धांत तेणु आरोह जुक्ति कौन करे किछि गुड़े किछि उदाहरण परीक्षा निरीक्षा करी गोटे लंफ जहाँ को आम आरोह लंफ बोली कही था आरोह लंफ विषय जाई से सिद्धांत आरोह लंफर साहाय्य नहीं सिद्धांत गोटे सार्विक तर्क वाक्यर वस्तुगत सत्यता को प्रतिपादन करिथाए तेणुक एठी जो आम कथा होचे जो आरोह जुक्ति गोटे तार जेनेरालाइज करिथाए सिद्धांत कारण किछि मनीष को परीक्षा कली टेरीक्षा कली समस्त मनीष विषय कहीदेली तेणु जो सार्वजनीन करिथाए बा सामान्यकरण जो करिथाए बोली आमे कहू से सामान्यकरण कौन हम यथार्थ हो पार प्रपर हो पार नहले से इम्प्रपर हो पार आम एमती भी कहीपर गोटे आरोह जुक्ति सबल हो पार नहले से दुर्बल हो पार तेणु सबल जुक्ति क्या कहवा ना सबल जुक्ति आम कहवा कौन ना
जो मु उदाहरण दूची समस्त मनीष मनशील क्या परीक्षा करी 3टी 4टी उदाहरण नहीं कि निश्चित भाव में सबल युक्ति कारण जन्म आ मृत्यु आम जाने ता भीतर गोटे कार्य कारण नियम अच्छी ता संगे ये हूँ आमर नेचर रे प्रकृतिर एटा गोटे नियम तेणुक ये दुईटी साहाय्य आम कौन करछे आपको सामान्यकरण करछे एई सामान्यकरण टी को आम यथार्थ बोली कहूचे किंतु मु जदि कहबी गोटे कुआ 1 को देखिली तार रंग कला कुआ 2 को देखिली तार रंग कला कुआ 3 को देखिली तार रंग कला तेणुक मुझे सामान्यकरण करदे कि कहली कौन समस्त कुआ कला अटंती किंतु एठी गोटे माने संभावना रही जदि आम हुए तो भारत बाहर गले जदि आम आफ्रिका महादेश को गले सिठी बुलू बुलू देखिले गोटे कुआ का करुचे किंतु तार रंग कला नहीं ताले गोटे विरुद्ध उदाहरण आम जहाँ परीक्षा निरीक्षा करके जहाँ सिद्धांत पहुँचीचे सबू को भूल करदेवार संभावना अच्छी से आम कहे यही जो सामान्यकरण करें एथिरे कार्य कारण नियमर साहाय्य नहीं ना तेणुक यही सामान्यकरण टी को आम इम्प्रॉपर बा आम ताको दुर्बल आरोह जुक्ति एतिकी व्यतीत आम आ गोटे कहूचे कौन ना जो आरोह तर्कशास्त्र आमको अनेक भाव साहाय्य करे आमर वैज्ञानिक सामान्यकरण करने आमको आरोह तर्कशास्त्र बहुत भाव में साहाय्य करे कारण मु प्रति माने जल कणिका को लेकिन परीक्षा करके देखिपारि ना ता भीतर उद्जान और अम्लजान अच्छी कि ना तार भाग के देखिपारि ना कारण सब जगार मो पाखे लैबोरेटरी नथिबो परीक्षा करने जदि सेमती करी ताले आग को बढ़ी पारि ना तेणुक आमर आम कि 2टी 3टी 4टी बलिष्ठ सांपुल नहीं जाऊे सांपुल नहीं जाऊे परीक्षा निरीक्षा करके तापर आरोह लंफर साहाय्य नहीं सिद्धांत आम सामान्यकरण करदे जो आम कहूचे आरोह पद्धति आमको वैज्ञानिक प्रगति बहु परिमाण आमको साहाय्य करे तेणुक यही आरोह जुक्ति आरोह तर्कशास्त्र से वैज्ञानिक पद्धति को पाइबापी आम कौन करूँ व्याख्यान कथा कथा ता छड़ा आमर जो गोटे साधारणतः आमर गोटे लक्ष्य होची कौन ना आम चतुर्पार्श्व जो घटना अच्छी वर्णना करवा तेणु ताको वर्णना करने आम अनेक गुड़े एक्सपेरिमेंटाल परीक्षणमूलक पद्धति आम अवलंबन करिथाउ आरोह तर्कशास्त्र अनेक गुड़े परीक्षणमूलक पद्धति विषय आलोचना करिथाए यथा अन्वय पद्धति व्यतिरेक पद्धति एवं संयुक्त पद्धति एवं सहचारी पद्धति एवं परिशेष पद्धति कारण सबू घटना सामान नुहे गोटे घटना को जदि आम अन्वय पद्धति द्वारा व्याख्या करि पारुछे आउ गोटे घटना को सहचारी पद्धति रे व्याख्या करि परिबा सेथिपई कि जॉन स्टुअर्ट मिल 5 प्रकार पद्धतिर प्रणयन करिसेंती तेणु से कहते यही पद्धति प्रणयन द्वारा आम जो जेनेरालाइजेशन सामान्यकरण करिपरिबा से सामान्यकरण आमको वैज्ञानिक प्रगति निमंते एकांत भाव में आमको साहाय्य करिपरिबा छड़ा आम कौन करूँ ना आरोह तर्कशास्त्र रे आम वैज्ञानिक व्याख्यान कथा कथा कारण जो किसी गोटे घटना को आम वर्णना कला बेले किसी असुविधा होची पुणी आमको अधिक व्याख्या करिवार आवश्यकता रोची तेणु आम से व्याख्यान आमर आरोह तर्कशास्त्र रे आलोचना करा जे व्याख्यान कहला बेलू लौकिक व्याख्यान हो पार वैज्ञानिक व्याख्यान हो पार तेणु आम विभिन्न प्रकार व्याख्यान बा एक्सप्लानेशन कथा कही था सेमती गोटे घटना को जदि आम जो व्याख्या करुचे आम देखुचे मझीरे आम अटकी जाऊे जहाँ जहाँ आम ताप जो पद्धति नहीं आम से जगार बुझे पारने ताले आम कौन करुचे ना सांगे सांग आम गोटे प्रकल्प आम तैयारी करुचे बोधे यही जो एमती होता आम प्रकल्प बोली कहचे जहाँ को आम कहचे प्रोविजनल सपोजिशन बोली कहुचे तेणु से प्रकल्पर साहाय्य नहीं आम कौन करुचे आमर आरोह तर्कशास्त्र तार व्यवहार करुचे तेणुक से कहे आम आमको आरोह तर्कशास्त्र जदि बा आम आरोह पद्धति द्वारा आम कौन करुचे आमर विवरणात्मक विज्ञान विषय रे आम आलोचना करुचे एम्पिरिकल साइंस विषय रे आम आलोचना करुचे
किंतु आरोह तर्कशास्त्र निजे गोटे विवरणात्मक विज्ञान मध्य आसुना कारण मु मूलर कही सारी तर्कशास्त्र हूँ आदर्शनिष्ठ विज्ञान यह वस्तुनिष्ठ विज्ञान ठार भिन्न तेणु ये जदिबा आमको अनेक गुड़िए जंत्र जोगाऊँ अनेक गुड़िए पद्धति अनेक गुड़िए मध्यम जोगाऊँ जहाद्वारा कि आम वस्तुनिष्ठ विज्ञान व्याख्यान करिपरिबा किंतु आरोह तर्कशास्त्र बा तर्कशास्त्र निजे वस्तुगत विज्ञान अंतर्भुक्त नुहे आपर आसवा आम आमर अवरोह तर्कशास्त्र को अवरोह जुक्ति को आप आसवा अवरोह तर्कशास्त्र बा अवरोह जुक्ति आम कौन देखो आपादन उपरे आम गुरुत्व देथु जहाँ आमको दि जाइए जहाँ बाहरी पार जहाँ दि जाइए जहाँ निश्रुत हो पार केवल सेतिकी कथा आम सिद्धांत कहीपर यही कथा आमको अवरोह तर्कशास्त्र शिक्षा देछि बा अवरोह जुक्ति यहाँ आम शिखीचे से अवरोह जुक्ति को आम पुणी दुई प्रकार विभक्त करिपरिबा गोटे हूँ इमिडिएट आ गोटे हूँ मेडिएट इमिडिएट रे आम कौन करुचे जो थे गोटे आमर गोटे हेतुवाक्य आम सांगे सांगे सिद्धांत रे पहुँचुचे से आम कहचे इमिडिएट आउ जो आम देखुचे नहीं आउ दुई तीन टा हेतुवाक्यर साहाय्य आमको दरकार हेतुवाक्य मध्यस्थता दरकार ताको आम कौन कहचे मेडिएट डिडक्टिव इनफरेंस बा अवरोह जुक्ति बोली ताको आम कहचे तेणुक से कौच ये जो इमिडिएट इनफरेंस ये मध्य चारि प्रकार हो पार ताको आम कहचे कन्वर्सन ओवर्सन कंट्रापोजिशन इनवर्सन आम ताको कहचे समवर्तन व्यावर्तन अंतरावर्तन विपरीतावर्तन एमती करके आम कहचे सेमती आम कहचे मेडिएट इनफरेंस भी जहाँ को आम कहचे सी भी मध्य दी प्रकार हो पार गोटे हूँ आमर प्योर प्योर सिलोजिम बोली ताको आम कहचे त्रिपदी जुक्ति आ गोटे हूँ मिश्र त्रिपदी जुक्ति बोली कहुचे गोटे को आम खाली त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर त्रिपदी जुक्ति और मिश्र त्रिपदी जुक्ति बोली मध्य आम ताको कहचे आ छड़ा आम देखुचे जो आमर जो लॉजिक बा तर्कशास्त्र कथा कथा होचे केवल एमती नुहे तर्कशास्त्र कथा केवल आमर पाश्चात्य भूमि रे तर्कशास्त्र विषय रे अरिस्टोटल बा जॉन स्टुअर्ट मिल से माने केवल तर्कशास्त्र विषय रे कथा होचन सेमती नुहे आमे मध्य भारतीय तर्कशास्त्र विषय रे मध्य आमे आलोचना भारतीय दर्शन रे मध्य आमे आलोचना करिथौ साधारणतः आमे जेतबेले आमे जेतबेले तर्कशास्त्र कथा कहू आमे साधारणतः बुझी थाउ जे तर्कशास्त्र प्रणयता बा प्रतिष्ठाता के ना अरिस्टोटल को बुझी थाउ सेथिपई अरिस्टोटल का नाम रे मध्य ताको नामित करा जायछि ताको मध्य अरिस्टोटलीय तर्कशास्त्र बोली कहा जाए ताको मध्य ट्रेडिशनल बा पुरातन तर्कशास्त्र बोली कहा जाए ताको मध्य क्लासिकल लॉजिक बोली भी कहा जाए ठीक सेमती आमे आमर इंडियन बा भारतीय तर्कशास्त्र कहा को बुझुचे जोटा कही आमर भारतीय दर्शन रे गोटे न्याय दर्शन अच्छी से न्याय दर्शन रे आमर तर्कशास्त्र विषय रे मध्य बा तर्कशास्त्र बा जुक्ति मध्य जुक्ति केमती गोटे जुक्ति सठिक जुक्ति हो पार यथार्थ जुक्ति हो पार निर्भुल जुक्ति हो पार से विषय रे मध्य आलोचना कराई तेणु एठी जो आम भारतीय तर्कशास्त्र शास्त्रीय जुक्ति कथा जो कथा होचे आमे सेठी साधारणतः तीनोटी पद गोटे हूँ हेतु गोटे हूँ साध्य आ गोटे हूँ पक्ष ये तीनोटी पद को लेकिन आम से जुक्ति गठन कर साध्य किंतु अरिस्टोटल आम देखुचे कौन ना अरिस्टोटल ताको तीनोटी टर्म रे कही गोटे हूँ मेजर टर्म गोटे हूँ माइनर टर्म गोटे हूँ आमर मिडिल टर्म मध्य पद आ गोटे हूँ साध्य पद आ गोटे हूँ पक्ष पद बोली कही तेणु साध्य पद बा पक्षपद बा मध्यपद क्या जानिबा ना जोटी जो सिद्धांत रे जो दुईटी आसबे से दुईटी हम पक्ष आउ साध्य आउ जोटी रे आमर जो पदटी केवल अवयव हेतुवाक्य रे थिबो किंतु सिद्धांत रे नथिबो आमे ताको कोड कहबा ताको मध्यपद बोली कहबा
तेणु से कौन कौन ना तीनोटी जिनस अधिक गुरुत्व दौले भारतीय तर्क भारतीय दार्शनिक माने जुक्ति को लेकिन से तीनोटी हूँ हेतु हेतु को आम बुझु कौन हेतु माने मध्यपद हेतु को आम बुझु कौन ना जी कि साध्य पद सहित निरविच्छिन्न संपर्क जार थाए ताको आम कौन कहू हेतु पद बोली कही था मध्यपद बोली कही था से निश्चित भाव में साध्य पद सहित संपर्कित सब बेले एमती नुहे जे केतबेले संपर्कित होइछि केतबेले संपर्कित होइनि सेमती नुहे सब बेले संपर्कित होइकि थाए ताको आमे कहि थाउ व्याप्ति बोली कहि थाउ व्याप्ति को आमे सब अनुमानर ताको स्नायु बोली मध्य ताको परिगणित करथाउ ताको आमे कहू ये होछि निरविच्छिन्न संबंध बोली कहार ना हेतु आउ साध्यर संबंध बोली मध्य कहा जाय थाए भारतीय दार्शनिक माने बा न्याय दार्शनिक माने तांकर जो जुक्ति तांकर जो अनुमान सेथिरे से माने पांचटी तर्क वाक्य कथा कहछन किंतु अरिस्टोटल तांकर जो जुक्ति देइछन सेथिरे से तीनोटी तर्क वाक्य विषय रे कहछन तेणु एठी जो पांचटी तर्क वाक्य विषय रे न्याय दार्शनिक माने कहछन से गुडी कहला प्रतिज्ञा उदाहरण उपनय एंड एवं निगमन अरिस्टोटल जो कहूँ से गुड़िक हूँ मेजर प्रेमिस बा ताको आमे कहबा साध्यवयव पक्षावयव एवं सिद्धांत बोली ताको कहि परिबा मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस एंड कंक्लूजन किंतु आमर न्याय दार्शनिक माने कहउचंती प्रत्येक जुक्ति रे पांचटी अवयव पांचटी अंशविशेष अछि गोटे हैला जहाँ आमे प्रमाण करबा चाहूचे ताको आमे कहउचे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तापर आसब हेतु हेतु माने आमे कारण सेटा हम कारण कहीं आमे कहूचे जेंते आमे कहूचे पहाड़ रे धुआं देखा होचे द हिल हैज नहीं द हिल हैज फायर एटा धरा आमे प्रमाण करिया चाहूचे कहीं ना कारण से पहाड़ रु धुआं बाहर अच्छे बोले कहि परियो तेणु आमे देखुचे हेतु और साध्य भितर संपर्क केते निबिड़ संपर्क निरविच्छिन्न संपर्क तेणु करी से कहूची कौन ना ताको आमे कहूचे हेतु खाली तो हेतु आमर प्रतिज्ञा देदेले हेनी तापाई गोटे साधारण नियम भाया गोटे दबा उदाहरण दबा कौन उदाहरण दबा ना जोठी जोठी धुआं थाए बा निया थाए सेठी धुआं थाए तेणु से जो साधारण नियमटी को आम यही जगह अप्लाई करवा एठी कौन देखा ये पहाड़ धुआं बाहर तेणु अतएव आम प्रमाण करवा जे एठी निया लगी तेणुक से कहूँ कौन ना न्याय दार्शनिक माने कहते ए पांचटी अवयव अच्छी से पांचटी अवयव है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन किंतु अरिस्टोटेलियन जुक्ति आम देखुचे तीनोटी अवयव से गुड़िक हूँ साध्यावयव पक्षावयव एवं सिद्धांत बोली आम जाचे जमती आम जानुचे हेतु आमर न्याय दार्शनिक माने कहते कौन ना व्याप्ति आउ हेतु आ साध्य मध्य गोटे निरविच्छिन्न संपर्क अच्छी तो से संपर्क टी को आम कहचे व्याप्ति संपर्क सेमती आम गोटे पक्षधर्मता कथा कथा होचे पक्षधर्मता कहूँ कौन ना हेतु आमर पक्षपद माने जहाँ को आम कहचे माइनर टर्म बोली कहचे ता भीतर भी गोटे संपर्क रही यही संपर्क को नेले आमे कौन करिपरिबा ना गोटे यथार्थ जुक्ति गठन करिपरिबा बोली से कहउछन सेमती जेमती आमे अरिस्टोटेलीय जुक्ति आउ ता संगे आमे न्याय जुक्ति को जेमती आलोचना करले सेमती आमे कहबा अरिस्टोटल को तर्कशास्त्र किपरि भावरे प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र परिवर्धित संस्करण बोली केमती कहि परिबा वर्तमान से विषय देखा आम दी प्रकार वर्तमान जुगर आम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र कथा कथा होचे ता संगे पुरातन तर्कशास्त्र बा अरिस्टोटेलीय तर्कशास्त्र कथा कथा होचे तेणु से कहूँ पुरातन तर्कशास्त्र आउ प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र संपूर्ण भिन्न नुहे ता भीतर गोटे संपर्क अच्छी से संपर्कटी कौन ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र पुरातन तर्कशास्त्र सह संपर्कित जेमिति आमे जो वर्तमान अवस्था रे अच्छे आमर यही अवस्था आमर छोट बेलर शिशु अवस्था सहित संपर्कित तेणु पुरातन सेम पैटर्न एका जिनस केवल ये कौन हो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट
जो आगर जहाँ को आम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र कहूचे तार अर्ली स्टेज प्राथमिक अवस्था को आम कहते कौन आरिस्टोटेलिया तर्कशास्त्र पुरातन तर्कशास्त्र बोली कहते पुरातन तर्कशास्त्र परिवर्धित संस्करण को आम कौन कहूचे ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र बोली कहूचे। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र गोटे अत्यधिक तार सुविधा होची तार उपयोगी होची आम सबू जुक्ति को संपूर्ण भाव में आम कौन करवा ना ताको सांकेतिक भाव में व्यक्त करदेबा। सांकेतिक भाव में व्यक्त कले आम ता भितर संपर्क कौन साध्य मध्य आउ पक्ष मध्य संपर्क कौन जापर एवं आमको सहज एवं समय कम समय भितर आम से जुक्ति वैध कि अवैध जापर से आमको दुईटी जिनसर गोटे जुक्ति को जिते आम सांकेतिक भाव में व्यक्त करवा से आमको दुईटी जिनस निहाती भाव में दरकार। गोटे हूँ आम कौन करवा ना आम किसी चलर प्रयोग करवा आ किसी स्थिरांकर व्यवहार करवा ताको आम कहूचे तर्क वाक्य चल आ गोटे हूँ कौन तार्किक स्थिरांत बोली आम कहते। तर्क वाक्य माने तर्क वाक्य प्रत्येक जो आमर जो साधारण भाव में साधारण भाषा जो जुक्ति व्यक्त होती भीतर आम देखुचे से गोटे तर्क वाक्य तेणु प्रत्येक तर्क वाक्य कि आम कौन करवा गोटे गोटे अक्षर को नवा आमर ए टू जेड जो अक्षर गुड़िक अच्छी अरु क्ष पर्यंत जो अक्षर अच्छी प्रत्येक गोटे गोटे अक्षर को आम गोटे गोटे तर्क वाक्य नहीं कि सांकेतिक भाव में व्यक्त करवा। खाली आम भेरिएबल बा चलर साहाय्य सांकेतिक भाव में व्यक्त कले हम ना कारण गोटे वाक्यर अन्य गोटे वाक्य सहित संपर्क अच्छी जमती गोटे वाक्य धर आम कहवा जदि तुम्हें मते साहाय्य करिबा ताहले मु तुमको साहाय्य करी बा आम कहवा जदि सूर्य उदय हेबो तेबे आलोक हम तेणु आलोक हवाटा गोटे सूर्य उदय हवा उपर निर्भर करुच्चे तेणु आपको जिते आम भांगीदे देखा दुईटी सरल तर्क वाक्य अच्छी तेणु प्रत्येक सरल तर्क वाक्य गोटे गोटे आम चल नवा चलर साहाय्य नहीं कि सागर स्थिरांकर साहाय्य नहीं कि आम सांकेतिक भाव में व्यक्त करें जो जहाँ सांकेतिक तर्कशास्त्र जहाँ नियम अच्छी से नियम को जदि आम प्रणयन करी आम गोटे जुक्तिर वैधता को निरूपण कर तेणुक आम देखुचे पुणी केवल तो एतिकी नुहे आ छड़ा आम आहुरी तार जो परिवर्धित संस्करण बोली मु जो कहूची सांकेतिक तर्कशास्त्र को सांकेतिक तर्कशास्त्र आम परिमाणक भी नहुचे केवल गोटे सरल तर्क वाक्य को जो नहीं जाऊे से सरल तर्क वाक्य मध्य गोटे उद्देश्य अच्छी गोटे विधेय अच्छी तेणुक जेपर्यंत आम कौन कर खाली प्रपोजिशन को नेले सब जगह खाली प्रपोजिशन टाक एंटायर तर्क वाक्यटा को संपूर्ण तर्क वाक्यटा को आम नहीं पारिबा नाही मध्य केते केते जगह आमको तार उद्देश्य को सांकेतिक भाव में व्यक्त करने पड़ो विधेय को सांकेतिक भाव में व्यक्त करने पड़ो जिते उद्देश्य को सांकेतिक भाव में व्यक्त करी से मत परिमाणकर साहाय्य दरकार सार्विक परिमाणकर साहाय्य दरकार ता संगे मत आस्तिक परिमाणकर संकेत व्यवहार करने दरकार ये दुईटी संकेत व्यवहार करी एवं मु कौन करी स्थिरांक आउ चलांकर व्यवहार करी ए सबूर व्यवहार करी तेणु मु कौन करी गोटे बा आमे कौन करबा गोटे जुक्ति को सांकेतिक भाव में उपस्थापन करिपरिबा एवं सांकेतिक भाव में उपस्थापन करिके तार वैधता निरूपण करिपरिबा। तेणुक आमर गोटे आज जो आलोचना कले आलोचनार गोटे मूल लक्ष्य है कौन ना आमर जुक्तिर वैधता आम तर्कशास्त्र रे किपरि गोटे जुक्ति उपस्थापन करवा निर्भुल भाव में सठिक भाव में एवं नियम को अनुकरण करी नियम को अनुसरण करी किभली भाव में जुक्तिर वैधता निरूपण करिपरिबा सेठी होची आज आलोचनार आमर विषय वस्तु आज मूल लक्ष्य। तेणु आसंता को आम पुणी तारी संपर्कित आमर जुक्ति संपर्कित बा गोटे आम कहवा ता संपर्कित जो सत्यता वैधता से विषय रे आम आलोचना करिपरिबा। तेणु आज आलोचनार आम एतिकी जानिपारे प्रथम कथा है जुक्ति गोटे तर्क वाक्य को नहीं गठित तर्क वाक्य आम देखुचे उद्देश्य अच्छी विधेय अच्छी तेणु तर्क समस्त तर्क वाक्य गुड़ी जुक्ति जो दिखाई किसी तर्क वाक्य जहाँ आमको दिखाई आम हेतु वाक्य कहीचे हेतु वाक्य जहाँ सिद्धांत आसूची आम कौन करुचे हेतु वाक्य जहाँ निश्रुत होची आम सिद्धांत बोली नौचे तेणु गोटे जुक्ति
हेतुवाक्य एवं सिद्धांत को नहीं गठित। तेणु ये हूँ आमर पुरातन तर्कशास्त्र। पुरातन तर्कशास्त्र परिवर्धित संस्करण हूँ प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। तेणु जेकोसी तर्कशास्त्र हो किंतु तार गोटे मात्र लक्ष्य, गोटे मूल लक्ष्य, से मूल लक्ष्यटी हूँ कौन ना गोटे जुक्ति को निर्भुल भाव में करवा एवं तार वैधता निरूपण करवा। जदि सेठी किछि नियम उल्लंघन होछि ताले केउ तर्क दोष जात होछि से विषय रे आलोचना करवा। थैंक यू, नमस्कार।